Good morning, students. Once again, we are here to discuss the second chapter of English class 10, and the recommended book is English First Flight, which is the help book of English for class 10. And the second chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Okay, first of all, we are going to discuss this chapter, and in this first video, we are starting this chapter. So the first question, student, who was Nelson Mandela? आप में से कोई जानता है कि नेल्सन मंडेला कौन थे? Here it is a paragraph, a small paragraph written about Nelson Mandela. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 3 शताब्दियों से चले आ रहे वाइट रूल के बाद ये पहला कोई ब्लैक प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के. नेल्सन मंडेला अफ्रीकन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस ANC party won 252 of the 400 in the first democratic election of the South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful and experience that operation of one by another. Nelson Mandela, in his address, jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 10,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. So, in this chapter, we are going to start from the first para, that is here 10th May, dawn bright and color. 10 मई का सुबह साफ और चमकदार था. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay this respect before the inauguration. एक ऐसा समय था जहां पिछले कुछ दिनों में विश्व के महान हस्तियों से घिरा हुआ था और राजनीतिज्ञों से घिरा हुआ था जो उद्घाटन से पूर्व सम्मानित करने आए थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर यानी दक्षिण अफ्रीका की धरती पर यह पहला संसार का इतने बड़े नेताओं का जमावड़ा होना होगा. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. ये समारोह पत्थर से बने हुए एक खुले थिएटर जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना था वहाँ हुआ. For decades this had been the seat of white supremacy. कई सदियों तक यहाँ ये जो सीट था ये सिर्फ सफ़ेद लोगों की वरिष्ठता की सीट मानी जाती रही है. And the sight of rainbow gathering of different colors and nations of an installation of South Africa's first democratic and non-racial government. ये विश्व में इसलिए इतना फेमस होने वाला था क्योंकि यहाँ विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठे होने की जगह बन गई थी जो दक्षिण अफ्रीका की पहली अनस्लीय सरकार थी. ये नस्लीय नहीं थी क्योंकि हमेशा श्वेत लोग ही बनते आ रहे थे पिछले 3 सेंचुरी से. ये पहला था कि कोई ब्लैक पीपल में से यानी उनकी नेटिव अफ्रीकन में से कोई उनका प्रेसिडेंट बनने जा रहा था. On that lovely autumn day, I was accompanied by daughter Jinani on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in, the second deputy president. And then Thabo Mbeki was sworn in, the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people.
To the assembled guests and the watching world, I said, उस सुंदर पतझड़ के दिन में मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। स्टेज पर मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली, फिर थैबो मेबेकी प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसमें विश्वास करने कायम रखने की शपथ ली और अपने आप को गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई की समर्पित की शपथ ली। इकट्ठे हुए मेहमानों और देख रहे संसार को मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society to which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago that have today been given the rare privilege to the nations of the world on our own. We thank of our distinguished international guests having come to the possessions with the people of our country of that of what if all a common victory for justice, peace, for human dignity. तो स्टूडेंट्स इस पैरा में ये बताया गया कि जिस तरह से वी हैव लास्ट अचीवमेंट ऑफ ए पॉलिटिशियन एम्फेसिपेटेशन वी प्लेस आवर सेल्फ, हम लोग खुद से अपने आप को शपथ लेते हैं कि लिबरेट करेंगे सारे नियमों कायदे कानून को। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो बंधुआ मजदूरों की स्थिति है, डिप्रीवेशन है, सफरिंग है, जेंडर इनइक्वलिटी है एंड जो भी अदर समाज में बुरी हुई भेदभाव, नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन हैपन, और मेरे सरकार में कभी ये दोबारा होने नहीं जाएगा। द सन शैल नेवर सेट सो ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये बताया गया है कि आज जैसे कि हम हमारी उपस्थिति में कई नई जन्मी स्वतंत्रता को ज्ञान और उम्मीद प्रदान करते हैं। मानवीय आपदा के अनुभव से जो इतने लंबे समय तक खत्म हुआ है, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जो पूरी मानवता को गर्व कर सके। ये हमारे लंबे समय से दुनिया के देशों से कटे रहे हैं, अर्थात देशों हमसे संबंध विच्छेद कर लिए थे। संसार के इतने सारे देशों की मेज़बानी करने का एक दुर्लभ अवसर मिला है। हम हमारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते जो अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपने लिए मानते हैं। हम आखिर हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। हम हमारे लोगों को लगातार जारी गरीबी, दुख, लिंग भेद और अन्य भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। कभी नहीं और कभी भी यह नहीं होगा कि यह सुंदर धरती एक का दूसरे के द्वारा शोषण अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी नहीं छिपेगा। स्वतंत्रता को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को वरदान दे। तो ये सोच है नेल्सन मंडेला जी का इस चैप्टर में, जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट का अपना प्लेस ले रहे थे, ओथ ले रहे थे, ओके, कि ये ऐसा एक भविष्य खुल के आया है जो कि अफ्रीका के भविष्य के लिए काफ़ी सुंदर होगा। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of millions of loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and police. Their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, and I was not unmindful of fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets
left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। ये बताया जा रहा है कि इस पैराग्राफ में कुछ ही क्षण के बाद हम सभी की आंखें भय के से उठ आई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से दक्षिण अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान की दहाड़े एक शानदार नज़ारा प्रस्तुत करते हुए पार है। एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार और जो ईमानदार स्वतंत्रता से चुनी गई एक लोकतांत्रिक सरकार को वो शाबाशी दे रही है। केवल कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की रक्षा फौज और पुलिस के बड़े जनरलों, जिनकी छाती पुराने दिनों में प्राप्त रिबनों और मेडलों से सजी थी, ने मेरे सामने सैल्यूट किया और वफादारी की कसम खाई। मैं इस बात को भुला नहीं सकता कि कुछ ही साल पहले वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, अपितु मुझे गिरफ्तार करते हैं। अंत में इम्फाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे को काला, लाल, हरा और नीला और सुनहरा रंग भी आकार के पैटर्न में छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. उस दिन मुझे हमेशा प्रतीक बन गया, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय गान के द्वारा यह दिन के लिए एक प्रतीक बन गया, क्योंकि वहाँ दो राष्ट्रीय गान हमने गाया। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेले अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम द ओल्ड एंथम द रिपब्लिक। Although the day neither group knew the lyrics of the anthem, they once despite they would soon know the words by heart. तो ये दो राष्ट्रीय गान था जो पिछले जो नया राष्ट्रीय गान था निकोसी सिकेले अफ्रीका और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे डी स्टेम। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रीय गान की सही लय को नहीं जानता था, जिसको वे दोनों नफरत करते थे, पर जल्द ही वे इसको शब्दों को दिल में याद कर लें। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन दिवस के दिन में इतिहास की भावना से सराबोर हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो पहली दशक थी 20वीं सदी के कड़वे और एंग्लो बॉयर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरी पैदाइश से ही पहले एंग्लो वार जो हुए थे, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड, जो श्वेत लोग थे साउथ अफ्रीका के, वो पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड अरेस्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल, और वहाँ जो काले रंग के लोग थे उनको अरेस्ट कर दिया, एक सिस्टम में ऐसा बांध दिया जिसको डार्क और वाइट के रूप में जाना लगा। डार्क जिन्हें पीपल कहा जाने लगा उनके अपने ही ज़मीन पे। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies. ये जो सिचुएशन था, स्ट्रक्चर था, क्रिएटेड हुआ था, वो बहुत ही हैरेस करने वाला, इनह्यूमन, असामाजिक और सोसाइटी के विरुद्ध था, जो दुनिया में अब जाना जा रहा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी दे माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और पिछले 20वीं जो डिकेड थी कुछ 20वीं शताब्दी के, वहाँ खुद मेरा 8 डिकेड्स एज ए मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। मैंने ये देखा और मेरे प्रयत्न से ये हुआ कि सिस्टम ओवरटर्न, बदल गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाई वन डेट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम, और एक ही सिस्टम बचा, सही और आज़ादी का, सारे लोगों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, आइदर दे वेर वाइट और ब्लैक अफ्रीकन। So by this way we will end this first video of this second chapter, that is Nelson Mandela long walk to freedom. We will meet in with the second video. Okay, so that's all for today. Okay.